अवसर है। आज के समारोह में परेड की सलामी भारत की माननीय राष्ट्रपति लेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह al-Sisi हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। Namaskar. As the largest democracy in the world awakens to celebrate its 74th Republic Day, we reach out to every Indian, not only across the length and breadth of this beautiful, diverse and unique country we call home, but also to those who, while living in foreign lands, feel that special tug of this ancient land. Republic Day greetings to one and all. Nestling a new name in its artistic aura, this historic avenue, now named Kartavya Path, is ready and waiting to host that celebration of military movement, armored display, and cultural kaleidoscope we call our Republic Day Parade. It's a misty morning. The early morning chill seems to be on its way out, and as the morning mist rises so that the sun may rise to the occasion, its gentle warmth will slowly elevate the temperature, spirits, and of course, curiosity levels. Well, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in our lives. Today, these winter-washed vistas come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our diversity while valuing our oneness. Celebration, in fact, takes on true meaning only when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. The engines of the largest democracy in the world are its people, its driving force. The 26th of January marks that day when our Constitution came into effect on this day. It was in 1950. The founding fathers of this nation and those visionaries who framed the longest written constitution in the world knew that only on the pillars of justice, liberty, fraternity, and equality could an enduring, equitable, and empowering democracy rest. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से
लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। Welcome viewers to the newly refurbished Vista, where this magnificent parade will unfold, a spectacle that happens on the magnificent stretch from Raisina Hills to the National War Memorial, a visual delight for an invited and ticketed audience seated on both sides of the ceremonial boulevard, the newly named Kartavya Path. Every year on the 26th of January, India celebrates its Republic Day with the greatest pride and zeal. As we commemorate the day, we became truly independent and a democratic republic nation. This day, our constitution, which is one of the most admired constitutions of the world, was enacted, meticulously drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, having in it several salient features that distinguish it from that of other countries. The world's longest written national constitution, it lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is a day when thousands line up, braving the weather and endless queues for security checks and entry from Raisina to Red Fort, where they are seated to be a part of this grand spectacle. Everything is shiny and bright, polished and primed for this grand parade, and this is a day that evokes emotions of grandeur and patriotism in every citizen, as it marks the power of Indian citizens to choose their government democratically. As India marks its platinum jubilee year of independence in Amrit Kal, we rightfully have so much to be proud of, as we're all gathered here to be a part of the 74th Republic Day celebrations. Children with their cheeks painted with the tricolour, and here you can see how eager and enthusiastic they are. In a few minutes, we shall witness the grand spectacle of our country's military prowess, scientific development, our rich cultural past and present, and the most favourite and not to be missed part of the parade at the end, when we have the daredevils of the Corps of Signals as well as the flypast by the Indian Air Force. 74वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता नया नवेला कर्तव्य पथ आज भव्य परेड का साक्षी बनेगा, जो विजय चौक से आरंभ होगी और इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचेगी। पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति, विदेश नीति के नए आयाम, ये सभी अमृत काल के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश के अमृत काल में भारत को G20 जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता का अनुपम अवसर मिला है और G20 का शिखर सम्मेलन इसी वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत काल में देश स्वर्णिम चमक बिखेरते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरिए से अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि विकास पथ पर देशवासी लगातार आगे बढ़ते रहें। उत्तर पूर्वी भारत में सड़क और रेलवे नेटवर्क के नजरिए से कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है।
बात जम्मू कश्मीर की करें तो उम्मीदों का नया सूरज यहाँ अपनी चमक बिखेरने लगा है। भारत के इस बदलाव में समाज के हर वर्ग का योगदान है। छोटे किसान बने देश की शान, कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं सूझबूझ से काम, और स्वामित्व योजना के परवान चढ़ने से हो रहा है सकारात्मक बदलाव। डीप ओशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और आर्थिक क्षेत्र में सहकारवाद पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं देश को बेवजह के कानूनों की जकड़ से मुक्ति मिल रही है। गांव से लेकर शहर तक के कारोबारियों के लिए वोकल फॉर लोकल ने ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोले हैं। हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। इसी सोच से पूरी दुनिया में भारत की नई छवि बन रही है। शासन में पारदर्शिता का आलम यह है कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है, छवि बन रही है। करोड़ों लोगों को 4 लाख शासन में पारदर्शिता का आलम यह है जीवन बीमा की सुविधा कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है, छवि बन रही है। करोड़ों लोगों को शासन में पारदर्शिता का आलम यह है जीवन बीमा की सुविधा कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है, छवि बन रही है। करोड़ों लोगों को शासन में पारदर्शिता का आलम यह है जीवन बीमा की सुविधा कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है, छवि बन रही है। करोड़ों लोगों को शासन में पारदर्शिता का आलम 21वीं सदी की दुनिया को पूरा करने वाली साक्षी राष्ट्रीय शिक्षा से हर वर्ग गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है, छवि प्रोफेशनल्स उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। भारत के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स परीक्षाओं के नतीजे हों या ओलंपिक्स का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इसी दिशा में एक सार्थक पहल है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अमृत काल में आगे बढ़ रहे भारत की एक बड़ी उपलब्धि है G20 की अध्यक्षता। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित होगा। G20 शिखर सम्मेलन होने तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से भारत अमृत काल में नया अध्याय लिखने को तैयार है। A spectacle of this scale cannot be organized without massive organizational skill and military discipline, planning from a multitude of agencies. And each year, the parade showcases and celebrates our military might, the cultural diversity, and the tableaus depicting the progress and achievements, the rich traditions of music, dance, our soldiers, our freedom fighters, the brave children, the many talented other children and youth who take part in the parade, all coming together in the biggest event in the capital city. Thousands of participants who brave months of preparations under the most tough weather conditions and the tightest and most elaborate security arrangements to put up a spectacular, colorful and scrupulously choreographed show that is beamed across the country and beyond for everyone to see India at its most fine.
The parade itself begins at Raisina Hill, Vijay Chowk, and traverses through Kartavya Path up to the National War Memorial and then goes on to Red Fort, a distance of around 8 kilometers. Special mention must be made of the departure from protocol this year to include in its invited guests. Right now you're seeing on the screen the many children who've been invited here, but essentially we're talking about the unsung heroes of our country, the Shram Yogis, who have contributed to the construction and renovation of this vista on which we are today. The power corridor, the new parliament, and the executive enclaves of the Vice President and the Prime Minister's office and residence. These are workers and also street vendors, milk and vegetable vendors, who are occupying the enclosure which is opposite the saluting base, being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative, and truly democratic. A republic that is by the people, of the people, and for the people. We also have some 200 students, which you saw a little earlier, students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha and our special guests of today's parade. The entire stretch from Rashtrapati Bhavan to the War Memorial has been renovated, and it's after 2 years of construction and refurbishment that we're getting to see this aesthetically designed ceremonial boulevard. The audience at Kartavya Path, seated on the newly installed bleachers with retractable seats that have been reduced and reorganized this year for around 45,000 seats, of which 32,000 are for the public. कर्तव्य पथ जो पिछले वर्ष तक राजपथ था, वो सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण और सुधार का परिणाम है। इस पूरे इलाके पर बदलाव की ऐसी बयार चली है जिसने इसके कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्षों से जिन बातों की जरूरत महसूस की जा रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। राष्ट्रीय समर स्मारक इंडिया गेट से आगे और ये कर्तव्य पथ सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र आता है। 100 वर्ष से भी ज्यादा पहले बनाई गई इमारतों की जरूरत वक्त के साथ बदल गई है। इसमें आज के मुताबिक सुविधाएं और जगह को देखते हुए सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया। रायसीना पहाड़ी पर ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन और रायसीना पहाड़ी के नीचे उतरते ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतें, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। विजय चौक के उत्तर में लोकतंत्र का मंदिर, भारत की संसद है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, ये सभी इमारतें 1911 से 1931 के बीच बनी थी। इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका स्थानीय और देशी पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहता है। काफी समय से ये महसूस किया जा रहा था कि सुविधाओं की कमी पड़ रही है। सेंट्रल विस्टा का यह पूरा इलाका अब बदल रहा है। आने वालों के लिए सुविधाएं हैं, साफ सफाई है। यहां आने का अनुभव अब एक सुखद याद बनकर रह जाता है। नया भारत, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें और इन्हीं उम्मीदों को नई उड़ान दे रहा है सेंट्रल विस्टा। ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की। पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रायसीना पहाड़ी और आसपास के दायरे में फैली ये परियोजना किसी सपने को साकार करने जैसी है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय,
और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ को नया रूप दिया जाना शामिल है। सेंट्रल विस्टा परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर वर्तमान संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। स्थान की कमी और अन्य जरूरतों को महसूस करते हुए नए संसद भवन को भव्य और नई सुविधाओं के साथ विशाल स्वरूप में बनाया जा रहा है, जिसमें लोकसभा चेंबर 3115 वर्ग मीटर में होगा और इसमें 543 सीटों की जगह 888 सीटें होंगी। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर राज्यसभा का निर्माण कुल 3220 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें 245 की जगह 384 सीटें होंगी। नए परिसर में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन की छत पर स्थापित कांसे से निर्मित 9500 किलोग्राम के 20.5 फीट ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष का अनावरण किया। ये प्रतीक भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के कर्तव्य पथ और ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा ऐतिहासिक इंडिया गेट के ठीक सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में स्थापित की गई है। एवेन्यू को पर्यटकों और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। चाहे जन सुविधाएं हों या परिवहन, छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है और इसे नया रूप दिया गया है। आने वाले समय में सेंट्रल विस्टा नए भारत के गौरव की नई कहानी बयां करेगा। Kartavya Path prettified and preening, and it seems that this ceremonial boulevard is very well aware of its importance today, eagerly awaiting the host that is going to happen of medley of music. And here we are, over here in the audience, specially invited Shram Yogis, people who have contributed to actually renovating and redoing this ceremonial boulevard. The aim and the theme, of course, is more inclusion of the common person and mainstreaming it. We have street vendors, small vegetable vendors, and also we have special invitees, young children who will be participating in Pariksha Pe Charcha, the program, 200 of them, all over here, special enclosures, frontline VIPs. So Kartavya Path actually waiting to host and eagerly awaiting to hear the sounds of a medley of sounds. Varied beats as the parade goes by, the crisp clip-clop of horse hooves, the gentle swoosh of softly padded camel feet, and the gentle tinkle of the bells as they go by. In fact, India is a nation on the move, and the nature of movement, however, is such that it always leaves things behind. It is the content of what we leave behind and what we take along with us that the context of the future rests. And as we celebrate our 74th Republic Day, our extraordinary existence as a civilization through centuries of change and as a republic for just over 7 decades is foregrounded. गणतंत्र दिवस परेड के दौरान विदेशी अतिथियों की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है। इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1955 से वर्तमान आयोजन स्थल पर होने वाली भव्य और आकर्षक परेड में अब तक सर्वाधिक 5 बार फ्रांस और ब्रिटेन के अतिथि शामिल हुए हैं और बहुत से विदेशी मेहमानों ने साल दर साल गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाई है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के खास मेहमान हैं मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी।
भारत और मिस्र इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल-सीसी गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच मौजूद होंगे। मिस्र अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला अरब गणतंत्र देश, जो गीजा के पिरामिड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मिस्र और भारत के बहुत पुराने सांस्कृतिक और दोस्ताना संबंध रहे हैं। दोनों ही देश इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन्हीं संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में इस बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी मुख्य अतिथि हैं। ये पहला अवसर है जब 26 जनवरी की परेड में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। अब्देल फतह अल-सीसी मिस्र की सेना में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। 2010 से 2012 तक उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक के रूप में काम किया। वहीं साल 2012-13 में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 2013 और 14 में मिस्र के उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जनवरी 2014 में उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नति मिली थी। इसके बाद 2014 में ही वो मिस्र सेना से India and Egypt share close political understanding based on a long history of contact and cooperation in bilateral, regional and global issues. Both countries have cooperated closely in multilateral fora and were the founding members of the non-aligned movement. As you can see visuals coming to you from the saluting base, we've got an invited audience that is really keen and waiting patiently in this cold weather for the parade to begin. We also have 200 students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha as special guests of today's parade. And you can see them enthusiastically waving to the camera as it's spanning across, taking their pictures. This year's celebrations reflect the Prime Minister's vision of Jan Bhagidari, and the week-long celebrations for Republic Day begin on the 23rd of January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and ends on the 30th of Jan, which is Martyrs' Day. Some other highlights of this year's celebration sees a special cultural extravaganza, that is the Vande Bharatiyam group of dancers drawn from across the country. We've got Tales of Bravery by Veer Gatha 2.0 participants, a special military tattoo and tribal festival, melodious performances by an All India School Band competition, military and Coast Guard bands at the National War Memorial, NCC camps, digital sculpture projection, e-invitation, drone show, projection mapping, digital tributes at the National War Memorial, the Tyag Chakra, and of course Bharat Parv celebrations. The Republic today reminds us that as a nation we have entered the last quarter of our centenary celebrations, truly a period of Amrit Kal to touch new heights of glory and attain new pinnacles of development, growth and harmony. We should also all pledge today to work together and leave no stone unturned towards taking the nation forward and always serving the nation first before self. 75 वर्ष पूर्व हमारा देश आजाद हुआ, फिर हमने संविधान अपनाया, हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने। हमारे लोकतंत्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जिनसे दुनिया विस्मय करती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सभी को स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर इसी संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसका प्रभाव यह हुआ है कि देश के कोने कोने से साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी शीर्ष और सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं।
देश के स्वतंत्र होने से पहले इस तरह की कल्पना कठिन थी, लेकिन अब बदलाव की ये मानो परंपरा सी बन चली है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी पुरानी हैं। लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। ये जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वाह, वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला होता है, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here children
excited. Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is, of course, a labor of love and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहां मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल है। देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। एक 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। उन्नीस 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राफेल। इसके बाद 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही
अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में। जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 6 जैगवार विमान बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का। The Indian Air Force, considered one of the stronger air power forces in the world, our men and women in blue, in keeping with their motto, will also touch the sky with glory here at the Republic Day Parade. From the showering of flower petals as the parade begins to the much-awaited breathtaking finale, the fly past towards the closure of the parade, 45 Indian Air Force aircraft, one from the Indian Navy and 4 helicopters from the Indian Army will participate in today's parade. So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you, the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly past control and coordination being done by the 1 Air Force Formation Signal Regiment's Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training, and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra, with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding Public Address Section. Army known for ensuring that enough practice, enough discipline goes into bringing about perfection. And this is a program, this is a celebration, which is a national celebration. And visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind. And many images, in fact, today will continue to endure over time and form lasting memories. कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की गई है। पूरे कर्तव्य पथ पर 10 LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं और ये सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है। विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं। इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी
लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ। जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 74th Republic Day Parade 2023. To ensure the seamless and smooth live telecast to you. All in magnificence, Team Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 60 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions. From Rashtrapati Bhavan to National War Memorial. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs. 1 PTZ has been placed on top of retractable roof of presidential enclosure. For a versatile and the bigger picture of Kartavya Path. 2 Jimmy Jibs and 1 180-degree fisheye camera to ensure each and every moments will be captured. 15 cameras have been installed at National War Memorial. We have 2 Jimmy Jibs at NWM. Strategically placed on the top of the crane at India Gate, and 3 cameras on the top of India Gate both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras with Jimmy Jib near Burji of North Block, 2 at the dome of Rashtrapati Bhavan. The 60 cameras are supported and interlinked by high-definition OB vans placed at Kartavya Path, National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber and satellite connectivity to a production control room with magnificent monitor wall setup at Kartavya Path. For this live telecast, the overall in charge is Usha Pawar. Engineering in charge, Abhishek Agrawal. Program in charge, Anup Khajuria. And it's being produced by Jitendra Singh Chauhan. On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. Nexa. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद
और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. Nexa. An important marker of the start of the Republic Day Parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavya Path and central vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Param Veer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परम वीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। परम योद्धा स्थल में यहां पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। यह स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल।
25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. In fact, the call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country, and that's what makes this sacrifice so supreme, because the call a soldier answers raises no doubt, no question. राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रमाण है और प्रतीक भी। स्मारक में एक शाश्वत ज्योति है जो अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। पिछले वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का स्मारक की शाश्वत ज्योति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय कर दिया गया था। हमारे वीर सैनिक जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, हम घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि ये सीमाओं पर मुस्तैद हैं, जागते हैं और सर्वोच्च बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अमर जवान को नमन। Amar Jawan, etched in gold, fire sacred and pure, rising from the depths of substance. The nation, its safety, integrity and protection come first, always and every time for our soldiers. In fact, leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. An attitude colors your thoughts, words and actions constantly, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is leadership in its finest form. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has arrived here at the memorial, and before the parade begins, Prime Minister Narendra Modi, on behalf of a grateful nation, will pay homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, at the National War Memorial here, which is near India Gate.
the three service flags and the national flag catching the morning breeze. Harmonizing seamlessly with the surroundings, the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honourable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colours that really represent the diversity of our country. Greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। Antarsenagan! Salame! Shast!
Antardanagan! Shok! Shast! Gods! Antardanagan! Salame! Shast!